ہوتا ہے ایسا کہ برموڈا ٹرائنگل کے نزدیک جانے والا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا؟ آخر کہاں گم ہو جاتے ہیں ہزاروں ٹن وزنی جہاز، اور کیوں ان کا ایک نشان بھی نہیں ملتا؟ دنیا کی سب سے بڑی پہیلی کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ گہرے سمندر کے بیچوں بیچ ہے ایک ایسا علاقہ جہاں اب تک 1000 سے بھی زیادہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اٹلانٹک مہاساگر کا ایک ایسا حصہ جس کی گتھی آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا۔ پشچم اٹلانٹک مہاساگر کا یہی حصہ کہلاتا ہے برموڈا ٹرائنگل۔ یہی ہے دنیا کا سب سے رہسیمئی علاقہ۔ ذرا غور سے دیکھیے اس ترکون کو۔ کوئی اسے موت کا ترکون کہتا ہے تو کوئی اسے بھتہا ترکون کہتا ہے۔ یہ ترکون میامی فلوریڈا اور سینٹ جوانس سے مل کر بنتا ہے۔ دیکھیے اس علاقے کو۔ یہاں سے اب تک کئی سمندری اور ہوائی جہاز حیرت انگیز روپ سے غائب ہو چکے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کھوجبین کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کا اب تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ان جہازوں کو آسمان نگل گیا یا سمندر لیل گیا۔ اس ٹرائنگل میں پھنستے ہی جہازوں کا نیویگیشن سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جو بھی اس ٹرائنگل کے بھور میں پھنسا اس کا پھر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ حالانکہ کچھ لوگ اسے سپر نیچرل طاقت کی کرامات مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے خطرناک سمندری جیووں کی بھومکا کی جانچ بھی کر رہے ہیں، تو کچھ اسے سمندری لہروں کا تانڈو بتاتے ہیں۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سمندری کھیتر کے بڑے حصے میں میتھین ہائیڈرائڈ گیس کا بھنڈار ہے۔ اس گیس کی وجہ سے اٹھنے والے بلبلے کسی بھی جہاز کے اچانک ڈوبنے کا کارن بن سکتے ہیں۔ لیکن جب امریکہ نے جیوگرافیکل سروے کرایا تو پتا چلا کہ بیتے 15,000 سالوں میں سمندری جل میں سے گیس کے بلبلے نکلنے کا کوئی بھی ثبوت اب تک نہیں ملا ہے۔ تو یہ بھی ترک سامنے آیا کہ ہیوی میگنیٹک علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں جہازوں کا نیویگیشن سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ جہاز راستہ بھٹک جاتے ہیں اور درگھٹنا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ آج تک کسی بھی جہاز کا ملبہ کیوں نہیں ملا ہے؟ ٹرائنگل کے رہسیہ نے نہ جانے کتنوں کو فیسینیٹ کیا اور کتنوں نے اس پر کتابیں لکھی، یہاں تک کہ ہالی ووڈ نے تو اس پر پوری فلم ہی بنا ڈالی۔ لیکن سب سے زیادہ چونکانے والی بات سامنے آئی حادثے کے 17 برس بعد۔ غائب विमान کے ایک پائلٹ کے آخری ریڈیو سندیش کا خلاصہ ہوا۔
अप्रैल 1962 में एक अमेरिकी मैगजीन ने विमान चालकों और नेवल बेस के बीच हुई आखिरी बातचीत का ब्यौरा छापा और ये आखिरी संदेश था, हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। ये खुलासा अमेरिकन नेवी के एक अधिकारी के 23 अगस्त 1948 की रेडियो लॉगशीट के हवाले से किया गया। इस रहस्य का यही पहला खुलासा था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी सुपरनैचुरल पावर का हाथ बताया गया। लोगों को यह भी लगने लगा कि इन हादसों के पीछे जरूर किसी रहस्यमय शक्ति का ही काम है। वैसे तो इस बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला सन 1872 से जारी है। 1872 में जमैरी नाम का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में डूब गया, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। सन 1945 में फ्लाइट 19 का पूरा बेड़ा, जिसमें नेवी के 5 हवाई जहाज भी शामिल थे, बरमूडा ट्रायंगल में समा गया। सन 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सन 1948 में 4 इंजन वाला जहाज ट्यूडोर ट्रायंगल में खो गया। जहाज में सवार 31 लोगों का कोई पता नहीं चल सका। सन 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा पलक झपकते ही लापता हो गया। सन 1952 में ब्रिटिश जहाज 33 लोगों के साथ समंदर में समा गया। सन 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त गायब हो गया। सन 1972 में 20,000 टन वाला जर्मनी का जहाज ट्रायंगल की भेंट चढ़ गया। सन 1997 में जर्मनी का एक और विमान बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया और 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कहां गुम हो गई। बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। ये रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल 500 वर्षों से न जाने कितनी कहानियों को अपने आप में समाये हुए है। कितने ही सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां वैज्ञानिक भी खुद को लाचार पाते हैं। वैज्ञानिकों की पूरी फौज बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बरमूडा ट्रायंगल को अब समंदर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। धरती का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सारे नियम बरमूडा ट्रायंगल में आकर टूट जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को निगल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी हैं। पिछले 500 वर्षों से रहस्य बने इस समुद्री इलाके के बारे में
सबसे पहले कोलंबस ने दुनिया को बताया था। अब कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी बिजली गिरती दिखाई दी, और जो दिखाई दिया वो था आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समंदर में समा गया। दुनिया की सबसे बड़ी पहेली ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। आपको ये भी बता दूं कि जब 1 जून 2009 यानी पिछले महीने ही फ्रांस एयरवेज का ये विमान जब इस ट्रायंगल का शिकार बना, तभी ब्राजील एयरलाइन TAM के एक पायलट ने इस इलाके में आसमान से आग के कुछ टुकड़े देखे और समंदर के बीच उसे ऑरेंज कलर के कुछ धब्बे दिखाई दिए। है ना हैरत की बात। इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी आसमान से उतरी आग का जिक्र किया था। खैर, इस बरमूडा ट्रायंगल की सबसे दिलचस्प कहानी तो अमेरिकन नेवी के दस्तावेजों में लिखी हुई है। तारीख 5 दिसंबर 1945 बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय इतिहास का सबसे हैरत अंगेज दिन। एक साथ 5 विमान लापता हुए। अमेरिकन नेवी में हड़कंप मच गया और दुनिया सन्न रह गई। हादसे के 64 वर्षों बाद भी रहस्य अब तक कायम है। 73 मील उड़ान के बाद 120 मील का वापसी सफर तय करके वापस फ्लोरिडा के नेवल बेस पर उतरना था। लेकिन 5 दिसंबर 1945 का दिन गुजरे 64 बरस बीत चुके। ये हवाई जहाज आज तक वापस नहीं लौटे। बरमूडा ट्रायंगल के इस मायाजाल की हद तो तब हो गई जब इन 5 विमानों को समुद्र में ढूंढने गया अमेरिकन नेवी का एक और विमान 13 लोगों की जांच टीम के साथ लापता हो गया। तमाम हाथ पैर मार दिए गए, लाख कोशिशें कर ली गई, लेकिन आखिर में हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या है इन जहाजों के गायब होने का रहस्य? ये तो बरमूडा ट्रायंगल की इन्हीं लहरों में छुपा है जो अब तक कोई नहीं जान पाया। न आप, न हम और न दुनिया का कोई और इंसान। हालांकि इस रहस्य को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन लहरों को क्यों पैदा किया गया? बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है? वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना के 2 डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जैसूब कहते हैं ये 2 डॉक्टर जो थे इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी कि कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़न तश्तीरें देखी हैं और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब तक कि जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आया।